Question number 2. If A and point 0, 0 and B 0, 5 are the endpoints of the chord AB of the circle x square plus y square plus 4x minus 5y is equal to 0, then show that part A, the line from the center of the circle is perpendicular to chord AB. CD is a line passing through the center of the circle, so CD will be perpendicular to the chord AB. Also bisect the chord AB means the length of BD should be equal to the length of AB. Bisect means divide into two equal parts. Part B, the line from the center of the circle to the midpoint of the chord is perpendicular to the chord AB. देखिए यहाँ पे easy question है. Given points are A, हमारे पास है 0, 0, B 0, 5. क्लियर? हमने यहाँ के रफ सर्कल ड्रा किया है. गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल is x square plus y square plus 4x minus 5y is equal to 0. Comparing with general equation of circle, comparing with general equation of circle being x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. क्या आ जाएगा? 2g, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट हमारे पास है +4, so 2g is equal to 4. 2f y का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे -5, so 2f is equal to -5. इसी 2 को डिवाइड कर दिया जाएगा. g इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2. यहाँ पर भी ये 2 डिवाइड करें तो आ जाएगा f इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 2. g इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2 एज 2. यहाँ पे आ जाएगा f इज इक्वल टू -5 divided by 2. So center of the circle. So center of the circle is -g minus f. तो ये आ जाएगा g की जगह यहाँ पे 2, so -2 माइनस f की जगह -5 डिवाइड बाय 2. तो क्या आ जाएगा? सेंटर बिकम -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 डिवाइड बाय 2. दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल x square plus y square plus 4x
माइनस 5y। ये सेंटर आ गया -2 and 5 divided by 2. Let D is the midpoint of chord AB. Let D having point XY be the midpoint of chord AB. Clear? So by midpoint formula, find formula dxy is equal to x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 whole divided by 2. Put values. तो क्या आ जाएगा? देखिए dxy which is the midpoint of AB, तो A और B में x1 हमारे पास है 0 प्लस x2 हमारे पास है अगेन 0 और डिवाइड बाय 2 कामा y1 is 0 प्लस 5 डिवाइड बाय 2। तो क्या आ जाएगा? 0 डिवाइड बाय 2, 5 डिवाइड बाय 2, 0 डिवाइड बाय 2 है 0 और ये आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 2। दिस इज द midpoint of chord AB. अभी हमने CD का स्लोप फाइंड करना है, AB का हमने स्लोप फाइंड करना है। फिर हम देखेंगे क्या इन दोनों का जो स्लोप है इसका प्रोडक्ट -1 की इक्वल है कि नहीं। अगर इसका स्लोप CD का स्लोप और AB का स्लोप इसका प्रोडक्ट -1 की इक्वल आ जाए तो ये CD will be perpendicular to AB. Now slope of AB, देखिए आप now slope of AB. क्लियर? से इस स्लोप को हमने नाम दिया m1 का और ये हमारे पास इक्वल है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। पुट वैल्यूज x1 x2 y1 y2 तो क्या आ जाएगा? m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB है तो स्लोप ऑफ AB में देखिए y2 हमारे पास है 5 माइनस y1 हमारे पास है 0 डिवाइड बाय x2 is 0 और x1 हमारे पास है 0। So 5 minus 0 is 5 divided by 0 minus 0 is 0. So m1 is undefined. देखिए यहाँ पे m1 is undefined। और हम ये जानते हैं कि y एक्सिस का स्लोप भी हमारे पास क्या है? अनडिफाइंड। सिंस
saying slope of y-axis is also undefined. So this line means AB. So line or chord. So chord AB. So chord AB is parallel to y-axis. ये y-axis को पैरेलल आ गया। क्यों पैरेलल आ गया? क्योंकि यहाँ पे इसका स्लोप जो है वो हमारे पास क्या है? अनडिफाइंड। अभी हमने स्लोप ऑफ CD को फाइंड करना है। नाउ स्लोप ऑफ CD, say this is n2 और इसका फार्मूला हमारे पास है y2 minus y1 divided by x2 minus x1। क्लियर? इसमें वैल्यूज पुट कर, पुट वैल्यूज तो क्या आ जाएगा? m2 इज इक्वल टू y2। अब C और D है, लेकिन D हमारे पास से 0 and 5 divided by 2। y2 हमारे पास से 5 divided by 2 minus y1 which is also 5 divided by 2 divided by x2 which is 0 minus x1 which is minus 2। तो ये 5 by 2 और ये 5 by 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 0 divided by 0 plus 2 means m2 as 0 divided by n number as 0। अब देखिए यहाँ पे m2 हमारे पास आ गया 0। तो इसका जो अब हम जानते हैं कि जिसका स्लोप हमारे पास 0 हो वो हमारे पास है x एक्सिस या एनी लाइन which is parallel to x axis will have slope equal to 0। स्लोप आ गया 0 since we know that slope of x axis is 0, it means that line segment CD, so line segment CD is parallel to x axis। अब देखिए यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। सो AB should be perpendicular to CD since x axis and y axis are perpendicular to each other, thus CD is also perpendicular to part AB. Thus CD is also
perpendicular to chord A B। हमें देखिए यहाँ पे second part इसमें also bisect the chord। Next we show that length of BD is equal to length of AD। Now we show that CD bisect the chord AB। CD bisect AB means we show that AD length should be equal to BD length। We find AD by using distance formula and BD by using distance formula। If these two are equal, then CD bisect chord AB। देखिए यहाँ पे AD डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑल स्क्वायर रूट। क्लियर? ये हमारे पास है डिस्टेंस फार्मूला। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, पुट वैल्यूज। तो देखिए यहाँ पे ए डी है तो ए हमारे पास है 0 0 और डी हमारे पास है 0 5 डिवाइड बाय 2। x2 हमारे पास है 0, x1 हमारे पास है 0, तो 0 माइनस 0 और स्क्वायर प्लस y2 is 5 डिवाइड बाय 2 माइनस y1 is again 0, so 0 all square रूट। तो क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 is 0 स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाय 2 all square रूट। 0 स्क्वायर is 0 plus 5 divided by 2 और square and square root। तो क्या आ जाएगा? इससे हमारे पास आ जाएगा 5 divided by 2 और square and square root। ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा AD is equal to 5 divided by 2, say this is equation 1। अभी हमने फाइंड करना है BD। नाउ BD again distance formula x2 minus x1 all square plus y2 minus y1 all square and square root। ये भी हमारे पास है डिस्टेंस फार्मूला। पुट वैल्यूज
क्या आ जाएगा x2 देखिए अब b है, b हमारे पास है 0 5, x2 हमारे पास है 0, x1 हमारे पास है 0, सो 0 माइनस 0 और स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 5 डिवाइड बाई 2, y1 हमारे पास है 5, तो 5 डिवाइड बाई 2 माइनस 5 और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 है 0 स्क्वायर प्लस यहाँ पे एलसीएम ले, इसका एलसीएम आ जाएगा 2, ये 2 कैंसिल आ जाएगा 5 माइनस 2 फायदा 10 और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। 0 square is 0, 0 square is 0, so length of BD become 0 plus 5 minus 10 is minus 5 plus minus 5 divided by 2 whole square रूट। तो देखिए यहाँ पे -5 का स्क्वायर ले, इवन नंबर है तो ये आ जाएगा 25 डिवाइड बाय 4 स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर रूट ले तो ये आ जाएगा 5, 4 का स्क्वायर रूट ले तो ये आ जाएगा 2, एंड दिस इज द लेंथ ऑफ BD, से दिस इज 2। अब देखिए यहाँ पे 1 का लेंथ AD का लेंथ वो भी हमारे पास 5 डिवाइड बाई 2 आ गया, BD का लेंथ हमारे पास भी 5 डिवाइड बाई 2 आ गया। तो फ्रॉम 1 and 2 AD length is equal to BD, और ये दोनों हमारे पास इक्वल है 5 डिवाइड बाय 2। Thus CD means D bisect the chord AB. Thus CD bisect the chord AB। ये यहाँ पे हमने प्रूव किया गया। सेकंड पार्ट तो देखिए अब यहाँ पे सेकंड पार्ट बी हमारे पास है, देखिए यहाँ पे पार्ट बी, द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल मीन्स CD which passing through the center of the circle to the midpoint D of the chord AB is perpendicular to the chord AB. Since CD is a line passing as a line passing through the center of the circle, through the center C of the circle, passing through the center of the circle and midpoint D of the chord, and midpoint D of the chord, midpoint D of the chord
card AB is perpendicular to the card A. Is perpendicular to card A B as proved above. फिर हमने प्रूव किया, हमने ए बी का स्लोप फाइंड किया और सी डी का स्लोप, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसी वजह से हमने यहाँ पे लिखा एज प्रूव एबव। दस पार्ट ए एंड पार्ट बी आर प्रूव। क्लियर? ये यहाँ पे प्रूव हुआ। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हमने यहाँ पे रफ सर्कल ड्रा किया है। क्वेश्चन 3 हमारे पास है, शो दैट द कार्ड्स ए बी एंड डी ई आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सेंटर से इक्वल फासले पे होगा। सर्कल हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और इसका जो सेंटर है वो हमारे पास है 0 0। यहाँ पे है सेंटर ऑफ द सर्कल है 0 0। The coordinates of the endpoints of the two cards A, B and D, E are A is -2 0, B is 2 0, D is 0 2 and E is 2 0। देखिए यहाँ पे इजी क्वेश्चन है। गिवन पॉइंट्स आर A is -2 0 and B is 0 2। इसका मिड पॉइंट फाइंड करें। फॉर एग्जाम्पल इसका मिड पॉइंट हमारे पास है P। लेट P have coordinates x y be the midpoint of card AB. So by using midpoint formula, on midpoint P xy is equal to x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2। अब यहाँ की वैल्यूज पुट करें, पुट वैल्यूज तो क्या आ जाएगा? ये हमारे पास है ए बी का, सो ए हमारे पास है -2, ये x1 आ गया, 0 एज x2, सो -2 प्लस 0 divided by 2, y1 is 0 plus 2 divided by 2, तो ये आ जाएगा -2 divided by 2, 2 divided by 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा 1। मीन्स कोऑर्डिनेट्स at the midpoint of card AB is -1 1। क्लियर? अभी देखिए यहाँ पे ये आ गया हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ ए बी विच इज P। अभी हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है। देखिए नाउ
we find length of PC. Now, length of PC is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square रूट। ये हमारे पास है डिस्टेंस फार्मूला, ये हमारे पास है डिस्टेंस फार्मूला। पुट वैल्यूज देखिए, P हमारे पास है -1 1 और C हमारे पास है 0 0, यहाँ पे लिखिए 0 0। तो x2 यहाँ पे हमारे पास है 0, x1 हमारे पास है -1, तो ये आ जाएगा 0 -1 all square plus y2 is again 0 minus y1 is 1 all square root। क्या आ जाएगा 0 minus plus 1 whole square plus -1 whole square root। 0 plus 1 is 1 whole square plus -1 whole square root। 1 square is 1 plus -1 square is again 1, so 1 plus 1 is 2 square root, means length of PC is 2 square root। से दिसे इक्वेशन 1। अभी हमने BE का मिड पॉइंट फाइंड करना है, ये हमने फाइंड करना है से दिसे Q X Y, ठीक है। और फिर हम C और Q का लेंथ फाइंड करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो ये कार्ड और ये कार्ड सेंटर से इक्वल फासले पे होगा। नाउ लेट Q XY be the midpoint, of DE, clear? Where D हमारे पास है 0 2 and E हमारे पास है 2 0। Now by using midpoint formula, midpoint formula Q X Y become X1 plus X2 divided by 2, Y1 plus Y2 divided by 2, put values, तो क्या जाएगा देखिए यहाँ पे x1 is 0, x2 is 2, so 0 plus 2 divided by 2, y1 is 2 plus y2 is 0 divided by 2, so 0 plus 2 is 2 divided by 2, 2 divided by 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पर भी आ जाएगा 1,
this is the midpoint of chord D E. Clear? Now हमने फाइंड करना है क्यू सी बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। देखिए यहाँ पे, नाउ क्यू सी is equal to x2 minus x1 all square plus y2 minus y1 all square and whole square root। ये हमारे पास है डिस्टेंस फार्मूला। क्लियर? अब यहाँ की वैल्यूज पुट करें, पुट वैल्यूज तो क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पे क्यू सी के पॉइंट्स हमारे पास है 0 0 और क्यू का पॉइंट हमारे पास है 1 1। सो x2 is 0, x1 is 1, so 0 minus 1 whole square plus y2 which is 0 minus y1 is 1 all square root। क्या आ जाएगा? -1 all square plus -1 all square root। -1 square is 1, so 1 plus 1 all square root, तो ये आ जाएगा 2 square root। This is the length of QC. Say this is equation 2. Take it from 1 and 2 PC length is equal to QC length, और ये दोनों हमारे पास इक्वल है 2 स्क्वायर रूट के। So the point C या 2 chord AB and DE are equidistant from the center of the circle। Clear? अभी हम लिखेंगे, since these two are equal, thus chord AB and B are equidistant from center of the circle। ये यहाँ पे प्रूव हुआ। क्लियर? लिखते शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी, सेम क्वेश्चन है। पार्ट बी हमारे पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब सर्कल हमारे पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसका सेंटर अगेन 0 0 है। कार्ड हमारे पास है ए बी एक कार्ड और डी ई सेकंड कार्ड। कार्ड ए का जो पॉइंट से एंड पॉइंट वो हमारे पास है a -4 0, b है 0 4, d है 0 4, e is equal to 4 0। क्लियर? देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर हमारे पास है C, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 0 0। क्लियर? A हमारे पास है a -4 0, B हमारे पास है 0 4। इसका मिड पॉइंट और इसका
ये ए बी का मिड पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल इसको हमने नाम दिया पी एक्स वाई। लेट पी having coordinate x y be the midpoint of chord A. So P x y having coordinates x y is equal to x1 plus x2 divided by 2 y1 plus y2 divided by 2. This is called midpoint formula. Clear? So by midpoint formula, चलो यहाँ पे लिखी by formula of midpoint लिया जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, पुट वैल्यूज तो क्या आ जाएगा? P having coordinate x y is equal to x1 is minus 4 plus 0 divided by 2, y1 is 0 plus 4 divided by 2. तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा -4 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 2, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा -2, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2, सो P पॉइंट विल बी -2। क्लियर? अभी हमने P और C का जो लेंथ है, P C का जो लेंथ है, हमने ये फाइंड करना है। नाउ बाय डिस्टेंस फार्मूला, PC is equal to x2 minus x1 all square plus y2 minus y1 all square root. Put values क्या आ जाएगा? P C हमारे पास है 0 0, सो x2 हमारे पास है 0, x1 हमारे पास है -2, सो 0 -2 और स्क्वायर प्लस y2 is 0 minus y1 is 2 और स्क्वायर रूट। क्या आ जाएगा? 0 माइनस प्लस, तो 0 प्लस 2 और स्क्वायर प्लस 0 -2 है -2 और स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 0 प्लस 2 is 2, सो 2 स्क्वायर है 4, तो ये आ जाएगा 4 प्लस -2 स्क्वायर इज अगेन 4, क्योंकि इवन नंबर है ये माइनस चेंज होगा प्लस में। 4 प्लस 4 इज 8 स्क्वायर रूट। 8 स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं, देखिए 2 into 2 और स्क्वायर रूट। इसी पेयर से एक बार निकाले तो ये आ जाएगा 2 into 2 स्क्वायर रूट। सो लेंथ का PC is equal to 2 square root से दिस इज 1। Now let D P या Q हमने लिखा, Q
Q be the midpoint of D E. Okay, now let Q having coordinate x, y be the midpoint of D E, where D having coordinates 0, 4 and E 4, 0. So by distance formula, so by midpoint formula, Q having coordinates x, y is equal to x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2 for 20. Clear? For 20. तो क्या आ जाएगा? x1 is 0, x2 is 4, so 0 plus, यहाँ पे देखिए 0 plus 4 divided by 2, y1 is 4 plus 0 divided by 2, तो ये आ जाएगा 4 divided by 2, 4 divided by 2, ये कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पर भी आ जाएगा 2, so Q x y is equal to 2. Clear? ये आ गया मिड पॉइंट ऑफ डी ई. अभी हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है, हमने फाइंड करना है क्यू सी. देखिए यहाँ पे इसका लेंथ हमने फाइंड करना है. नाउ बाय डिस्टेंस फार्मूला Q C is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square and square root. Put values. यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा QC. देखिए x2 xc के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 0, 0 और Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 2, 2. सो 0 is x2, x1 is 2. सो QC is equal to x2 is 0 minus 2 whole square plus y2 is 0 minus y1 is 2 whole square और यहाँ पे है स्क्वायर रूट. तो क्या आ जाएगा? -2 whole square plus -2 whole square रूट. -2 square is even numbers है तो ये आ जाएगा 4 plus 4 square root, तो ये आ जाएगा 8 square root. 8 square root को हम लिख सकते हैं 2 into 2 whole square root. इसी पेयर से एक निकाली बाहर तो ये आ जाएगा 2 into 2 square root और ये आ गया लेंथ ऑफ क्यू सी. से दिस इज इक्वेशन 2. अब देखिए 1 का आंसर भी हमारे पास आ गया, ये भी हमारे पास 2 into 2 स्क्वायर रूट है
ये भी हमारे पास 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट है, मीन्स ये दोनों डिस्टेंस सेम आ गए। इसका ये मतलब हुआ कि ये कार्ड ए बी और डी ई ये कार्ड सेंटर से इक्वल फासले पे है। क्लियर? फ्रॉम 1 and 2 PC is equal to QC और ये दोनों हमारे पास इक्वल है 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट 10 कार्ड AB and DE are equidistant from center of the circle, from center which is C of the circle. Clear? ये यहाँ पे हमने प्रूव किया।